Welcome to the next part of Physics Chapter 1, Motion. Motion in one dimension. Okay, so in this part we are going to learn more about graphs which are used in physics. And you must be wondering that graphs were part of statistics in mathematics till now, but how come graphs are used in physics as well? Graphs are very important part of physics to understand the interrelationship between different quantities. Right here you see two types of graph in front of you. One is bar graph on the left side of the screen, and one is line graph. These both kinds of graph you have come across in class 8. In this class we are going to study about some specific line graphs. The first one being distance time graph, position time graph or distance time graph. Let's take an example. Suppose there is an observer who is standing at position 0. 0 is to be considered on a straight line. Okay, so there is the 0 on a straight line, and away from the position, away from the observer towards the right side, there is 1, 2, 3 and so on numbers indicated. So what are these? These are different positions away from the observer. And these positions, they signify the distance in meters towards the right side of the observer. Okay, so now what is happening? This observer is collecting a data which will be used to plot a line graph. Line graph which will give you a relationship between position or distance and time. Right? So what is happening? At 0 second, the position of the car was 3 meters away from the observer. At 1 second, like after 0 second, the time changes to 1 second. The observer has a clock in his hand, a stopwatch. Right? So 0 second, 1 second, 2 second. So after 1 second, again the position of the car was at 3 meter. After 2 seconds, the position of the car was at 3 meter. After 3 seconds also it was at 3 meter, and after 4 seconds also it was at 3 meter. So if this information is plotted on a position time or distance time graph, it would look like this. This y-axis which you see over here, see, this is where your coordinate geometry knowledge will be useful. So it's good that we have covered that chapter already. This y-axis is the axis which shows distance. Okay, and x-axis is the axis which shows time. That's why it is known as distance time graph. Distance is always plotted on y-axis. Please take a note of this. Distance is always plotted on y-axis and time is always plotted on x-axis. So now at 0 second, the car was at 3 meter. At 1 second, the car was again at 3 meter. Then at 2 second, also it was at 3 meter. 3 seconds, also it was at 3 meter. 4 seconds, also it was at 3 meter. So here, when you plot the distance time graph, you get a straight line parallel to x-axis or time axis, right? So a straight line parallel to time axis or x-axis, a straight line parallel to time axis or x-axis shows that body is at rest. Please note this down. Note this thing down. A straight line parallel to time axis or x-axis shows that the body is at rest. So just by looking at the graph, we understand what is happening
with the motion of a body. Is it at rest or is it moving? Just by looking at the graph, a distance time graph, a velocity time graph, any kind of graph which exhibits motion of a body, just by observing these graphs, we can get so many informations regarding the position, motion, speed, velocity, acceleration of the body. That's why graphs are very, very important. They're very informative. In pictorial manner, they give us the information. You don't have to write everything. Just imagine to write all these things. At 0 second, the car was at 3 meter. At 4 second, the car was at 3 meter. ये सब sentences में लिखते 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 कितना टाइम लगेगा? और ग्राफ बना देंगे तो इजीली देख के समझ में आता है कि ये कार रेस्ट पे है, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है आगे, लेकिन पोजीशन नहीं बढ़ रही है. पोजीशन वही है 3 मीटर पे. That's why distance time graphs or any kind of graphs are efficient tool for describing a motion, right? अब एक देखो यहाँ पे ऑलरेडी वो लोग ने कंक्लूड करके दिया है, जो हमने ऊपर लिख लिया, नोट कर लिया, ऑलरेडी वो लोग ने अपने वर्ड्स में कंक्लूड किया है. देख लो, इफ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस in position time or displacement time or distance time graph, then the body is at rest or stationary. प्लीज नोट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. और एक एग्जांपल देख लो इसका. यहां पे क्या बोला है पता है? फ्रॉम दिस एग्जांपल ऑनवर्ड्स वी विल फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ ग्राफ ऑब्टेन्ड assuming that time will be along OX and distance along OY. मतलब हमेशा अब हम टाइम को एक्स एक्सिस पे ही रखेंगे, डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे रखेंगे. ठीक है, तो देखो ये क्या डेटा है हमारे पास. डेटा का जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो ये फिगर ए में दिया है, और यहाँ पे एक टेबल दिया है. वो टेबल देखो जरा. 0 सेकेंड पे डिस्टेंस 0 था बॉडी का, 1 सेकेंड पे हो गया डिस्टेंस 2, 2 सेकेंड पे हो गया 4, 3 सेकेंड पे हो गया 6, और 4 सेकेंड के बाद डिस्टेंस हो गया उसका 8. तुम्हें दिख रहा है कि ये बॉडी आगे बढ़ रही है. ये बॉडी का डिस्टेंस अपनी पोजीशन से ये चेंज हो रही है, बॉडी अपना पोजीशन से वो डिस्प्लेस हो रही है. ठीक है, इसको अगर प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे? डिस्टेंस मैंने वाई एक्सिस पे रखा है और टाइम को एक्स एक्सिस पे. टाइम की जगह पे मैंने ले लिया है 1, 2, 3, 4, और डिस्टेंस की जगह पे मैंने 1 से लेके 8 तक सारे नंबर लिखे हैं. 0 सेकेंड पे बॉडी 0 पे था, मतलब फर्स्ट पॉइंट ये वाला होगा. 1 सेकेंड पे बॉडी 2 मीटर अवे था, तो ये 2 और ये 1, इनको ज्वाइन करके एक पॉइंट मिला है. जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पॉइंट प्लॉट करते हैं, वैसे ही पॉइंट प्लॉटिंग करना है. आफ्टर 2 सेकेंड्स द बॉडी was at 4 meter away from its original position. The body again went ahead by 2 meters, so it was 6 meter away from its original position after 3 seconds. And after 4 seconds, the body was at a distance of 8 meters from its initial position. ठीक है, तो इन सारे चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बन रही है. दिख रही है तुम्हें स्ट्रेट लाइन? ये वाली स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन का क्या मीनिंग है? दिस स्ट्रेट लाइन शोज दैट द बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड. द बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. इंटरवल ऑफ टाइम क्या है? ये देखो, इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 1 सेकेंड. बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? ये देखो यहां पे 2 मीटर. और एक इंटरवल ऑफ टाइम 1 to 2 सेकेंड, और एक डिस्टेंस कवर किया 2 to 4 मीटर, मतलब फिर से 2 मीटर, फिर से 2 मीटर, फिर से 2 मीटर. मतलब हर एक सेकेंड में, एवरी सेकेंड द बॉडी इज कवरिंग 2 मीटर. इफ द बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसको क्या बोलते हैं? द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड, और द बॉडी इज एग्जिबिटिंग यूनिफॉर्म मोशन. यही तो यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है. तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं? कंक्लूजन यहां पे लिखा हुआ है, देखो पढ़ते हैं हम लोग. प्लीज नोट कर लेना इसको, ग्राफ को ड्रॉ करके नोट करना है इसको. इफ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन
if we get a straight line inclined to time axis, if we get a straight line inclined to time axis in a distance time graph, अगर हमें distance time graph में एक slant line या inclined line मिलती है, time axis से inclined line मतलब क्या, ये देखो ये time axis है और ये line inclined है, इससे इन दोनों के बीच में एंगल है, ऐसी लाइंस को inclined lines बोलते हैं, inclined, जो एक दूसरे के साथ एक एंगल बनाती है। सो हमारे पास अगर जब हम डेटा को प्लॉट करेंगे और वो सारे प्लॉट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे, जो लाइन मिलेगी हमें, इफ इट इज एन इंक्लाइंड लाइन, स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म मोशन, द बॉडी एग्जिबिट्स यूनिफॉर्म मोशन। तो पहला टाइप का जो हमने ग्राफ देखा, इसमें लाइन स्ट्रेट थी लेकिन इंक्लाइंड नहीं थी, पैरेलल थी एक्स एक्सिस से। ये जो दूसरा टाइप का हमने ग्राफ देखा, उसमें ये जो लाइन है वो क्या है, इट इज इंक्लाइंड, इट इज इंक्लाइंड टू व्हाट, इट इज इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। जब ग्राफ टाइम एक्सिस से इंक्लाइंड रहता है, ठीक है, तो उसको कौन सा ग्राफ बोलते हैं, it is a graph of a body moving with uniform motion, constant speed, constant velocity। अभी तुम बोलोगे सर ये तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, क्या मैं इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पे क्या ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सेम रहेगा, प्लॉट करने का तरीका, उसको मतलब इंटरप्रेट करने का तरीका, समझने का तरीका सब सेम रहेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है, कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है बॉडी का, तो वो केस में ग्राफ कैसा दिखेगा ये हम एग्जांपल्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये समझो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ तुम पढ़ रहे हो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ रहे हो तुम, उसमें तुमने पहला एग्जाम्पल देखा बॉडी एट रेस्ट का और दूसरा एग्जाम्पल देखा बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन का। अब बिकॉज वी नो दैट द बॉडी इज मूविंग, उससे एसोसिएटेड और एक क्वांटिटी हमने पढ़ी हुई है, क्या, स्पीड या वेलोसिटी। हाउ टू फाइंड स्पीड ऑफ अ बॉडी यूजिंग ग्राफ, फॉर फाइंडिंग स्पीड ऑफ अ बॉडी यूजिंग ग्राफ वी नीड टू फाइंड स्लोप, हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, स्लोप। और नेक्स्ट टॉपिक इसी के बारे में, हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। अब बिफोर वी स्टार्ट दिस एंड फाइंड स्लोप, पहले मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, ये तुमने वर्ड स्लोप कहीं सुना है, पढ़ा है? आई एम श्योर तुमने ये वर्ड सुना भी है, पढ़ा भी है और यूज भी किया है ये वर्ड। अब मैं तुम्हारे सामने अलग अलग लाइन बनाऊंगा, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ये क्वेश्चन का आंसर तुम अपने आप को दे दो, मैं भी तुम्हें आंसर दूंगा, फिर तुम कंपेयर करो तुम्हारा आंसर और मेरा आंसर सेम है कि नहीं। अगर नहीं है तो सीखो, अगर सेम है तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें पता है कुछ चीज। इसको क्या बोलते हैं, ये एक लाइन है, कैसी लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या इसके पास स्लोप है, क्या इसके पास स्लोप है, मेरा क्वेश्चन है, क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन के पास स्लोप है? द आंसर इज नो, हॉरिजॉन्टल लाइन do not have slopes, हॉरिजॉन्टल लाइंस के पास स्लोप नहीं होता, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लेट्स टेक वर्टिकल लाइन। कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन, क्या इसके पास स्लोप है? तुम्हारा आंसर क्या है, वर्टिकल लाइन के पास स्लोप होता है? yes, it has, vertical line has infinite slope, इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा स्लोप है इसका। तुम्हें पता है ऐसे स्लाइड्स होती है, वाटर स्लाइड्स होती है ना, ये तुम्हारे वाटर किंगडम, फिर वो एक्वा इमेजिका, इसमें वो लोग बोलते हैं कि स्लोप बहुत ज्यादा है तो बहुत डरावनी होती है वो राइड, तो तुम बहुत ही फास्ट ऐसा नीचे स्लाइड करते हो। कोई राइड ऐसी बनी होगी कि जिसमें ऐसा होगा और तुम्हें यहां से ऐसे स्लाइड करके नीचे जाना है, अरे मर जाओगे तुम।
सीधा नीचे गिर के खत्म कहानी। तो ऐसी कोई लाइन वो लोग बनाएंगे ही नहीं वाटर स्लाइड के लिए, क्योंकि ऐसी लाइंस का स्लोप इनफाइनाइट होता है। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्लैंटिंग लाइन, है ना, स्लैंटिंग लाइन या इंक्लाइंड लाइन। इंक्लाइंड, किससे इंक्लाइंड है ये लाइन? ये लाइन हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है सपोज, तो इससे ये इंक्लाइंड लाइन या स्लैंटिंग लाइन। क्या इसके पास स्लोप है? यस, ऑल स्लैंटिंग लाइन्स डू हैव स्लोप्स। स्लोप समझा रहा हूं मैं सिर्फ, अभी तो मैं फॉर्मूला पे और कैलकुलेशन पे गया ही नहीं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के पास स्लोप नहीं होता, वर्टिकल लाइंस के पास इनफाइनाइट स्लोप होता है, और स्लैंटिंग लाइंस के पास स्लोप होता है। कितना होता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, बट पहले ये देखो, मैंने यहां पे एक स्लैंटिंग लाइन बनाई और एक स्लैंटिंग लाइन बनाता हूं। ये देखो, ये स्लैंटिंग लाइन ए है, ये स्लैंटिंग लाइन बी है। बताओ किसका स्लोप ज्यादा है? किसका स्लोप ज्यादा है? किस पे अगर अगर मैंने यहां पे बॉल रखा तो वो रोल होके जल्दी नीचे आएगा? एक्चुअली दोनों में बॉल सेम टाइम पे नीचे आएगा। यू थिंक सो? सेम टाइम पे आएगा या किसी में जल्दी आएगा? व्हाट डू यू थिंक? एक्सपेरिमेंट करके देखो। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करोगे तब समझ में आएगा। एक्चुअली जिसमें स्लोप ज्यादा है, जिसमें भी स्लोप ज्यादा है दोनों में से, ए में से और बी में से, उसमें ही बॉल जल्दी नीचे आए। एक्सपेरिमेंट करके तुम चेक कर सकते हो किसका स्लोप ज्यादा है। जो ज्यादा स्लैंटिंग है उसका स्लोप ज्यादा है, तो बी हैज मोर स्लोप। ठीक है, एंड ए हैज लेस स्लोप। बी का स्लोप ए से ज्यादा है, बी ज्यादा स्लैंट है, ए कम स्लैंट है, तो बी का स्लोप ए से ज्यादा है। बी हैज मोर स्लोप देन ए। अभी समझ में आया स्लोप क्या होता है? जितना स्लैंट बढ़ता जाता है उतना स्लोप भी बढ़ता है। तो यही स्लोप हमें कैलकुलेट करना है। और ये ग्राफ में हम लोग क्यों इसको पढ़ रहे हैं? बिकॉज ग्राफ्स में हमने देखा कि लाइन या तो हॉरिजॉन्टल होती है, कभी कभी वर्टिकल भी हो सकती है, और मोस्टली वो लाइन इंक्लाइंड होती है या स्लैंटिंग होती है। और वो स्लैंटिंग लाइन का जो स्लोप है वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है ग्राफ के बारे में। जैसे कि मैं यहाँ पे और एक तुम्हें थोड़ा सा परेशान करूंगा, एक एग्जाम्पल से। यही वाले ग्राफ में मैं और एक एग्जाम्पल बनाना चाहूंगा, और फिर मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा कि क्यों स्लोप इंपॉर्टेंट है। क्यों स्लोप इंपॉर्टेंट है? देखो, मैंने यहां पे और एक लाइन बना दी। ठीक है, अब देखो, एक चीज नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नोट किया तुमने? मिनट, करेक्ट। और ये भी नोट करो, ये बनाना ग्राफ तुम रफ में अपने बुक में। ठीक है, अभी मेरा क्वेश्चन सुनो। तुम्हारे पास ये एक ही कार्टेशियन प्लेन पे दो ग्राफ प्लॉट किए मैंने, बॉडी ए का मोशन और बॉडी बी का मोशन। पहला क्वेश्चन, बॉडी ए और बॉडी बी दोनों में से whom do you think has more slope? बॉडी ए और बॉडी बी में तुम्हें क्या लगता है किसका स्लोप ज्यादा है? प्लीज आंसर योर सेल्फ। बॉडी बी का स्लोप ज्यादा है, बी हैज मोर स्लोप, राइट। ए हैज लेस स्लोप, बी ज्यादा स्लैंट है, ए कम स्लैंट है। ठीक है, बी का स्लोप ज्यादा है, राइट। जो वर्टिकल लाइन से ज्यादा पास होता है ना उसका स्लोप ज्यादा होता है।
वर्टिकल लाइन से ज्यादा पास कौन है, बी है, बी, तो बी का स्लोप ज्यादा है। ठीक है, अब एक चीज नोट करो, बी 8 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है? तो मैंने बी से एक 8 से एक लाइन ड्रॉ किया, बी को टच किया, और फिर ये लाइन को मैंने हॉरिजॉन्टली नीचे एक्सटेंड किया, और ये कहीं पे जाके यहाँ पे टच कर रहा है। दिस इज अराउंड 1.7 सेकेंड्स, 1.7 सेकेंड्स पे, मतलब बी 1.7 सेकेंड्स में 8 मीटर कवर कर रहा है। व्हाट अबाउट ए? तो मैंने ए पे 8 मीटर से एक लाइन ड्रॉ किया एक पॉइंट पे, और वहां से एक वर्टिकली डाउनवर्ड्स लाइन ड्रॉ किया, और वो मिल रहा है 4 सेकेंड्स पे। मतलब ए उतना ही डिस्टेंस 4 सेकेंड्स में कवर कर रहा है जितना बी 1.7 सेकेंड्स में कर रहा है। तो ए 4 सेकेंड्स में 8 मीटर कवर कर रहा है, बी 1.7 सेकेंड्स में 8 मीटर कवर कर रहा है। बताओ अब किसकी स्पीड ज्यादा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज आंसर योरसेल्फ, किसकी स्पीड ज्यादा है? हु स्पीड इज मोर? ए की स्पीड ज्यादा है या बी की? ऑफ कोर्स बी की स्पीड ज्यादा है, क्योंकि वो सेम डिस्टेंस कम टाइम में कवर करता है। इफ अ बॉडी कवर्स मोर डिस्टेंस इन लेस टाइम, देन इट हैज मोर स्पीड। जबकि ए 8 मीटर कवर कर रहा है लेकिन उसको 4 सेकंड लग रहे हैं, बी को सिर्फ 1.7 सेकंड लग रहा है, तो किसकी स्पीड ज्यादा है? बी की। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो प्लीज। इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मैंने तुम्हें एक यहां पे शॉर्ट फॉर्म भी बताया, एसटी ग्राफ। एसटी ग्राफ मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मोर स्लोप इज इक्वल टू, मोर स्लोप मींस मोर स्पीड। जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। अब तुम्हें स्लोप क्लियर हो गया? मैंने स्लोप वर्ड को ना पूरा डाइसेक्ट करके तुम्हारे सामने रख दिया। इससे ज्यादा अच्छे से स्लोप तो कोई नहीं समझाएगा, ये बुक भी नहीं समझाएगी, क्योंकि बुक में भी स्लोप के बारे में इतना कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, स्लोप समझ में आया? ये सारी चीजें मैंने स्लोप के बारे में बताई थी। मोर स्लोप, लेस स्लोप ऑफ स्लैंटिंग लाइंस, इनफाइनाइट स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन एंड जीरो स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। और फिर मैंने ग्राफ में 2 लाइन बना के उनके स्लोप को कंपेयर करके फिर मैंने उसका मीनिंग भी बताया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ज्यादा स्लोप मतलब ज्यादा स्पीड। अब क्वेश्चन वापस वहीं खड़ा रहता है कि हाउ टू फाइंड स्लोप, स्लोप ढूंढते कैसे? चलो देखते हैं कैसे ढूंढना है। सबसे पहले तुम्हारे पास कोई भी लाइन है, सुनो मेरी बात, यहां पे सब लिखा हुआ है, तुम वीडियो पॉज करके रीड भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे चैप्टर एंड होगा तो ये पूरा पीडीएफ मैं तुम्हें भेज दूंगा, बट ये तब होगा जब सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, तो तब तक वीडियो में तुम्हें लर्न करना है, राइट? ये अगर लाइव क्लास, जूम क्लास होता ना, तुम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि तुम्हें तब भी समझना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट यूट्यूब में तुम पॉज करके सोच सकते हो, पहले डाइजेस्ट कर सकते हो इंफॉर्मेशन को, फिर प्ले कर सकते हो, या फिर से देख सकते हो। ये फायदा है तुम्हारे पास, ये पावर है, ये पावर का फायदा उठाओ प्लीज। ठीक है, चलो। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज हियर हाउ टू फाइंड स्लोप। तुम्हें पहले 2 पॉइंट्स लेने, यू हैव टू टेक 2 पॉइंट्स on your graph, any 2 point, random points, and then you have to complete a right angle triangle in such a way that from the point which is above, जो ऊपर वाला पॉइंट है, वहां से एक वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन बनानी है, एंड द पॉइंट विच इज बिलो, वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, और दोनों को इंटरसेक्ट करवाना। एक वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो कितने एंगल पे मीट करते हैं? 90 डिग्री पे। मतलब तुम्हें एक ट्राइंगल बनाना है एफ जी एच, जिसमें एच 90 डिग्री, राइट? अब क्या करना है? अब तुम्हें एक रेशियो ढूंढना है। किसका रेशियो पता है? ये जो हाइट है ना, हाइट वर्टिकल जी एच, और ये दिख रहा है तुम्हें ये बेस एफ एच, बस इसका रेशियो ढूंढना है तुम्हें, तो तुम्हें स्लोप मिल जाएगा। तो स्लोप क्या है? स्लोप इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस जी एच अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एफ एच। इसको याद रखने का और एक तरीका बताता हूं स्लोप का। इसके लिए मुझे ये एरो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा।
हाँ ये वो, ठीक है। स्लोप का और एक इजी वे है जो नेमोनिक टाइप का वे है याद रखने का फॉर्मूला को, वो है राइज अपॉन रन। स्लोप इज राइज अपॉन रन। मुझे बताओ कोई भी चीज राइज कैसे होती है वर्टिकली, दिख रहा है GH वर्टिकल डिस्टेंस, और कोई भी चीज रन कैसे करती है हॉरिजॉन्टली। तो राइज अपॉन रन, वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज द स्लोप। यहां पे एक और एक एग्जांपल दिया है वो लोग ने ग्राफ के साथ, इसमें हम लोग स्लोप ढूंढेंगे। चलो वही जो पिछले वाला एग्जांपल था ना, उसका स्लोप निकाला है वो लोग ने। तो यहाँ पे लोग ने दो एग्जांपल लिए हैं, मैं और एक एग्जांपल लेता हूं इसी में। तो ये पॉइंट मैं कंसिडर करूंगा पॉइंट बी और सी। बी से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा, सी से वर्टिकल लाइन बनाऊंगा, ठीक है। इसे 90 डिग्री ट्राइंगल रेडी हो गया। ये है राइज, ये है रन, ठीक है। राइज अपॉन रन इज स्लोप। राइज कितना है, सपोज राइस नहीं बोलो, चावल नहीं है, राइज 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 मतलब कितना उठ रहा है, कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है, उठाओ, राइज। राइज ही बोलते हैं यार, क्या हिंदी में मैं बोल रहा हूं, ठीक है। ये पॉइंट को नाम दे देते हैं x, ठीक है। सी एक्स कितना है, तो सी एक्स की वैल्यू यहां से पता चल जाएगी तुम्हें, सी एक्स है 2 अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बी एक्स कितना है, बी एक्स है यहां से यहां तक, वो भी है, सॉरी वो है 1। 2 to 3, 2 to 3 के बीच में कितना गैप है 1, और 4 to 6 के बीच में कितना गैप है 2, 2 अपॉन 1 राइज अपॉन रन, कितना आया 2। डिस्टेंस का यूनिट क्या है मीटर, और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो स्पीड कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमने स्लोप ढूंढा और स्लोप ही स्पीड होती है। समझ में आया? दिस इज हाउ यू फाइंड स्लोप, डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर राइज अपॉन रन, करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड द फर्स्ट टाइप, ठीक है। स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, you can find the speed of the body from a distance time graph. The slope of line is the speed of distance time graph. तो हमने पहले वाले एग्जांपल में स्पीड ढूंढी थी 2 मीटर पर सेकंड। अभी और एक एग्जांपल दिया है, यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे कुछ अलग चीज हो रही है यार। 0 सेकंड पे डिस्टेंस 0 था, 1 सेकंड पे डिस्टेंस 1 हो गया, 2 सेकंड्स पे डिस्टेंस 4 हो गया, 3 सेकंड्स में डिस्टेंस 9 हो गया, और 4 सेकंड्स में डिस्टेंस 16 हो गया। तुम बोलोगे सर क्या प्रॉब्लम है, बॉडी तो मोशन में है, हम प्लॉट कर सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बिल्कुल प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन जब प्लॉट करेंगे तो कुछ अजीब चीज देखने मिलती है। 0 0 1 1 2 4 3 9 एंड 4 16, ये सारे पॉइंट्स को जब प्लॉट करते हैं, ये डेटा को जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे जब हम प्लॉट करते हैं तो इनको ज्वाइन करने से हमें कर्व लाइन मिलती है। इसका मतलब क्या है, हमने एक चीज नोटिस की सबसे पहले हमने नोटिस किया कि जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये क्या दिखाता है पता है, कि बॉडी रेस्ट पे है। जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक इंक्लाइंड लाइन होती है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, ना इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, वो किसी से पैरेलल नहीं होती है, तो हमें ये समझ में आता है कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, मतलब बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और जब बॉडी के मोशन का ग्राफ एक कर्व होता है, तो हमें क्या समझ में आता है पता है, द बॉडी इज अंडरगोइंग एक्सिलरेशन और इट इज एग्जिबिटिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तुम्हें पता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन द बॉडी इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस मतलब अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। यहां पे देखो ना, हर सेकंड में, पहली सेकंड में 1 मीटर कवर किया, दूसरी सेकंड में 3 मीटर कवर किया। मैं कैसे बोल रहा हूं, ये कैसे, क्या देख के बोल रहा हूं, ये डिस्टेंस यहां पे जो दिया है ना, ये 1 सेकंड का गैप, इसमें 1 मीटर कवर किया, ये और एक 1 सेकंड का गैप, इसमें 3 मीटर कवर किया, और एक 1 सेकंड का गैप, इसमें 5 मीटर कवर किया, और एक 1 सेकंड का गैप, इसमें कितना कवर किया 7 मीटर कवर किया।
तो आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द बॉडी इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस। ऐसे केसेस में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तुम्हारा, वो क्या होगा, वो एक कर्व लाइन होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिखाता है ये, तो प्लीज ये नोट कर लो, ये ग्राफ भी ड्रॉ कर लेना और नोट कर लेना। इफ वी गेट अ कर्व्ड लाइन in distance time graph, then the speed is non-uniform, that is the body is accelerated. Body क्या exhibit करता है, accelerated motion. अब distance time graph का भाई आ गया यहाँ पे displacement time graph. मैंने तुम्हें इनिशियली बताया था दोनों सेम होता है, एक ही फर्क है दोनों में कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नेगेटिव भी हो सकता है। चलो आओ समझते हैं इधर क्या है, ग्राफ को ही देख के समझते हैं। अब तो हमारे पास ये पावर आ गया है कि ग्राफ देख के समझ सकते हैं हम क्या हो रहा है। ठीक है, तो बॉडी का जो पोजीशन था 0 सेकंड पे, ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी जा सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, इट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, एनीथिंग। ओके, तो बॉडी 0 मीटर पे, 0 सेकेंड्स पे 0 मीटर पे था। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, मतलब अराउंड 1 सेकेंड, 1 यहां पे होना चाहिए, बॉडी का पोजीशन हो गया, ये 1 होना चाहिए। ठीक है, बॉडी का पोजीशन हो गया 2 मीटर, मतलब बॉडी आगे बढ़ा। फिर आफ्टर 2 मीटर बॉडी का पोजीशन हो गया 4, आफ्टर 2 सेकेंड्स द बॉडी का पोजीशन हो गया 4 मीटर। देखो एवरी सेकेंड द बॉडी इज कवरिंग 2 मीटर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिखा रहा है बॉडी। आफ्टर 3 सेकेंड्स द पोजीशन ऑफ द बॉडी वाज 6 मीटर। ठीक है, तो पहली सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 मीटर, दूसरी सेकंड में 2 मीटर, तीसरी सेकंड में 2 मीटर। मतलब हमने यहां तक बॉडी को स्टडी किया है जब तक बॉडी ने 6 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ये वाली लाइन हमने स्टडी की। ये वाली लाइन से हमें क्या देखने मिलता है, ये वाली लाइन हमें दिखाती है कि द बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सो दिस इज एन एग्जांपल, फ्रॉम O to A द बॉडी इज एग्जिबिटिंग यूनिफॉर्म मोशन, इट हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, अब क्या हो रहा है, ए से ये ग्राफ नीचे जा रहा है, बॉडी आगे बढ़ना चाहिए ना, 6 के बाद 8 मीटर 10 मीटर आगे बढ़ना चाहिए, नहीं ये तो पीछे आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का रियल यहां पे एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। अब नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में, दैट इज 3 सेकेंड्स टू 4 सेकेंड्स के बीच में बॉडी 6 मीटर से वापस 4 मीटर पे आ गया। देखो 4th सेकंड पे बॉडी कहां पे था, 4 सेकंड पे, 4 मीटर पे, सॉरी। तो हुआ क्या, तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि आफ्टर कवरिंग 6 मीटर बॉडी ने सडनली एक यू टर्न ले लिया, सडनली यू टर्न ले लिया। वो सबसे पहले एग्जांपल पढ़ा था ना, वो बाइसिकल वाले बच्चे का जो अचानक से यू टर्न ले लेता है, यह वैसे ही किया इस बॉडी ने, यू टर्न लेके वो वापस आ गया 4 मीटर पे। फिर 1 सेकंड पास हुई और 5 सेकंड के बाद बॉडी 2 मीटर पे आ गया, वापस यू टर्न में पीछे पीछे जा रहा है बॉडी। और 1 सेकंड पास हुई, 6 सेकंड पे बॉडी वापस 0 मीटर पे आ गया। और 0 मीटर मतलब क्या है, 6 सेकंड पे बॉडी 0 मीटर पे आ गया, मतलब क्या है, मतलब है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया है। तो ये अगर बॉडी का तुम लीनियर एक लाइन में अगर वो कैसे चल रहा है वो देखना चाहोगे तो वो कुछ ऐसा है। यहाँ पे मैं डिस्टेंस लिख देता हूँ 2 4 6 8, ठीक है। और बॉडी का मोशन में दिखाता हूँ, पहले वो 0 से गया 6 पे और फिर वो यू टर्न मार के वापस 0 पे आ गया। और ये सब कितने सेकंड्स में हुआ, ये सब 6 सेकंड्स में हुआ, ठीक है। तो पहले ऐसा गया बॉडी और फिर वापस यू टर्न मार के वापस आ गया 0 पे, राइट। अब क्या हो रहा है, अब वो 6 सेकंड्स के बाद रुक नहीं रहा है, अब वो वापस पीछे जा रहा है अपने ओरिजिनल पोजीशन के उल्टे डायरेक्शन में। कहां पे जा रहा है वो जा रहा है -1 -2 -3 -4 की डायरेक्शन में। कहां जा रहा है पता है, -4 तक जा रहा है वो। मतलब बॉडी ने इनिशियल पोजीशन से अपनी जर्नी शुरू की,
6 मीटर पे यू टर्न मारा और फिर उल्टी डायरेक्शन में जर्नी उसने कंटिन्यू की जब तक वो 4 मीटर अवे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन पहुंच गया, मतलब -4 मीटर पे पहुंच गया, तब तक उसने अपनी जर्नी कवर की। तो 8 सेकेंड जब हो गए, टाइम जब 8 सेकेंड हो गया, तो उसकी पोजीशन क्या थी? -4 मीटर, दैट इज 4 मीटर बिहाइंड हिज इनिशियल पोजीशन। समझ में आया? सो दैट्स हाउ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज एग्जिबिटेड। वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है ना, ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये लाइन कंटिन्यू होगी यहां तक, जैसे ये उसकी फाइनल पोजीशन है, दैट इज 4 मीटर अवे फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उसकी वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? अब वेलोसिटी सबके लिए अलग अलग होगी, याद रखना। ओ ए पार्ट दिख रहा है तुम्हें? ओ ए मतलब जब बॉडी आगे बढ़ रहा है तो उसकी वेलोसिटी मतलब उसका स्लोप कितना होगा। ठीक है, स्लोप निकालने के लिए हम लोगों को 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, राइट? ये लोगों ने क्या 2 पॉइंट लिए पता है? फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, मतलब एक पॉइंट लिया है ओ एम अपॉन एम। एम तो दिख नहीं रहा है भाई, एम किधर? चलो कोई बात नहीं, हम लोग इसको इरेज करके प्रॉपर मैं तुम्हें बताता हूँ इसकी वेलोसिटी कैसे ढूंढता है। डोंट वरी अबाउट इट। आई होप यू अंडरस्टूड कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को प्लॉट कैसे किया। ये बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट है। तुम्हारी स्कूल में अगर ये लेसन फटाफट फटाफट खत्म किया है तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा टाइम उन्होंने स्पेंड नहीं किया, और इसी पे डाउट फिर निकलते हैं बहुत सारे। तो डाउट ना निकले इसकी वजह से हमको अच्छे से करना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ ओ ए हमें ढूंढना है। क्या होता है स्लोप ऑफ ओ ए? स्लोप ऑफ ओ ए इज राइज अपॉन रन, वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो उसके लिए 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो मैं 2 पॉइंट लेता हूं, एक ये पॉइंट लेता हूं और एक लास्ट वाला पॉइंट लेता हूं, चलेगा ना? सो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस एसोसिएटेड विद दीज 2 पॉइंट्स? तो इसको मैं यहां पे लेके आऊंगा। अब वर्टिकल डिस्टेंस दिख रहा है तुम्हें यहां पे? कितना है वर्टिकल डिस्टेंस? 6। अच्छा, अब ये जो 2 पॉइंट लिए हैं उसके करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन सा है? तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये है, ये वाला। कितना है? 3। तो स्लोप कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी, किसकी? ओ टू ए की। समझ में आया? 2 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी। ठीक है, अब हम ढूंढेंगे स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी, ए बी कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन, यहां से यहां तक, इसका स्लोप निकालेंगे। अब इसका स्लोप क्या होगा? तो पहली बात समझो कि इसका स्लोप नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा इसका स्लोप? कैसे पता चला कि नेगेटिव होगा? देखो मैं तुम्हें बताता हूं। सपोज मैं 2 पॉइंट लेता हूं इस पे, लेट मी इरेज पहले का जो भी चीज है। ठीक है, सपोज मैं 2 पॉइंट लेता हूं, एक पॉइंट मैंने ये वाला ले लिया, एक पॉइंट ये वाला ले लिया। ठीक है, अब टेल मी इफ आई टेक दीज 2 पॉइंट्स and if I want to find the vertical displacement, what will be the vertical displacement? देखो A पे vertical displacement कितना था? सॉरी 6, और 6 पे vertical displacement कितना था? 0। फाइनल vertical displacement कितना है? 0, और इनिशियल कितना था? 6। तो 0 - 6 होगा। ठीक है, -6 मीटर होगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और टाइम कितना गया? 3 to 6 सेकेंड्स। मतलब कितनी हो गई वेलोसिटी? -2 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में जा रहा है तो स्लोप भी नेगेटिव होगा, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमें पता चला कि ए बी की वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकेंड है और ओ ए की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। तो कुछ चीजें वो लोग ने यहाँ पे एक्सप्लेन की है, प्लीज लेट्स स्टडी दिस। नोट में लिखा है, तुम लोग भी नोट कर लेना इसको। You will observe 3-point difference between displacement time graph and distance time graph. All the 3 points are related to line AB.
distance can never decrease with time, whereas displacement may decrease with time as in AB. AB मतलब ये वाली जो लाइन थी, ये वाली, उसकी बात कर रहे हैं. So distance time graph line can never move downwards below x-axis, whereas displacement time graph can move downwards. ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया दोनों के बीच में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बीच में डिफरेंस. दूसरा डिफरेंस है, डिस्टेंस कैन नेवर बी इन नेगेटिव. Therefore, in distance time graph, you will never find a line below x-axis. वही बात की थी. When time is taken along x-axis, and time is always taken along x-axis, but displacement can be negative, and therefore you may find a line below x-axis. The slope of a distance time graph can never be negative. Distance time graph का slope कभी negative नहीं हो सकता. This is because distance is always increasing with time, whereas slope of a displacement time graph may be negative. तो हमने क्या देखा यहां पे, AB का स्लोप नेगेटिव था और OA का स्लोप पॉजिटिव था. ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ही होता है. ठीक है, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होता टाइम के साथ. ठीक है, एक तो वो लोग जो बात कर रहे हैं ना, वो मैं तुम्हें क्लियरली बताता हूं. पहले पॉइंट में बोला है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा ऐसा दिखेगा, जिसमें लाइन ऐसे ऊपर चली जाएगी, लाइन कभी नीचे नहीं आएगी. अगर लाइन नीचे आ गई तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है. दूसरा पॉइंट, अगर लाइन एक्स एक्सिस के नीचे आ गई तो ये पक्का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है. ये तीन डिफरेंस बताए वो लोग. ठीक है, सो द नेक्स्ट इज स्पीड टाइम ग्राफ. नाउ व्हाट इज स्पीड टाइम ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर समझा, स्पीड टाइम ग्राफ बहुत इजी है. स्पीड टाइम ग्राफ में यू टेक स्पीड ऑन एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, एंड टाइम ऑन एक्स एक्सिस. टाइम एक्स एक्सिस पे ही रहता है हमेशा. So first example they have shown here, at 0 second the speed of a car is, speed of a body is 3 meter per second. At 1 second the speed is 3 meter per second. At 2 second the speed is 3 meter per second. At 3 second the speed is 3 meter per second. At 4 second the speed is 3 meter per second. मतलब continuously from 0 to 4 second the speed is 3 meter per second. So this line is पैरेलल टू टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस. और जब भी स्पीड टाइम ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, इसका क्या मतलब है? व्हेनेवर स्पीड टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन एग्जिबिट कर रही है बॉडी, बिकॉज द बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो यहां पे कंक्लूजन लिखा है, प्लीज तुम लोग नोट करो. इफ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस इन अ स्पीड टाइम ग्राफ, देन द बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड. अगर हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन मिलती है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, किसमें? स्पीड टाइम ग्राफ में, तो बॉडी कैसे चल रही है? कांस्टेंट स्पीड से चल रही है. ये वाला देखो, यहां पे क्या हो रहा है? 0 सेकेंड पे स्पीड 0 थी, 1 सेकेंड पे स्पीड 2 हो गई, 2 सेकेंड पे स्पीड 4 हो गई. स्पीड बढ़ रही है, स्पीड इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग. एंड इफ यू सी द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, इट इज अ स्ट्रेट लाइन inclined to time axis, not parallel to time axis. And this happens when the body is moving with constant acceleration. What is acceleration? Increase in speed with time. So whenever a speed time, note this, please note this down. Whenever a speed time graph is a straight line inclined to time axis, then the body is said to be moving with constant acceleration. Then the body is said to be moving with constant acceleration. तो स्पीड टाइम ग्राफ में दो चीजें हमने पढ़ी. एक तो पैरेलल जब स्पीड टाइम ग्राफ होता है, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब बॉडी रेस्ट पे नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है. बॉडी आगे चल रही है लेकिन उसकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, मतलब बॉडी मोशन में है.
ऐसा सेम ग्राफ हमने जब डिस्टेंस टाइम में देखा था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो उसमें बॉडी रेस्ट पे था क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा था। बट स्पीड टाइम ग्राफ में इसका मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है क्योंकि हमने वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है उसका मीनिंग चेंज कर दिया, उसको स्पीड बना दिया। इसको ग्राफ से समझे हम। 1 सेकेंड पे बॉडी की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे बॉडी की स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड पे बॉडी की स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पे बॉडी की स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड। जब भी let's find the slope of a speed time graph. The slope of speed time graph gives you acceleration of the body. Here as we see that the speed of the body is increasing with time. That is, speed is not constant. This is not uniform motion. Whenever speed time graph of a body is an inclined line, it shows that the body has constant acceleration. It is moving with accelerated motion, not uniform motion. It's a non-uniform motion. But then what can we find with the slope of the graph? Slope of speed time graph. Slope of speed time graphs gives you acceleration. So let us find the acceleration in this case. Suppose we are taking 1.0 and another point A. What is the vertical displacement of OA? Vertical displacement of OA is 8. See here they have written. And what is the horizontal displacement? Horizontal displacement of OA is 4. So 8 upon 4 is 2 meter per second square. That is the slope of this speed time graph, and which is equal to the acceleration. So acceleration of a slope speed time graph is the slope of speed time graph. Can you tell me what is the slope of this graph? I told you horizontal lines have how much slope? What is the slope of horizontal line? 0. So what is the acceleration of this graph? 0. That means it has no acceleration, zero acceleration. That's why it is moving with constant speed. Zero acceleration means not zero motion. Zero acceleration means speed is constant. Motion is there, but speed is constant. So it is moving with constant speed. So I hope you understood speed time graphs, these two very important examples. Very important and interesting example. One more interesting example. Now here if you see what is happening at 0 seconds, the speed of a body was 8 meter per second. After 1 second, the speed became 6 meter per second. After 2 seconds, the speed became 4 meter per second. And like that, the speed went on decreasing, as you can see in the table. At the end of 4 seconds, the speed of the body became 0. So what is happening? The speed is decreasing, right? Let's find the slope of this graph. This is the vertical displacement and this is the horizontal. Now what is happening with the vertical displacement? The vertical displacement is decreasing of the graph. The vertical values of the graph is decreasing. Initial value was 8 and final value was 0. So if you find the value of vertical displacement of graph, it will be 0 minus 8, and horizontal displacement of the graph is 4. So it will be minus 8 upon 4, which is minus 2 meter per second square as given here. So here the acceleration is negative. That means this is an example of constant retardation. So whenever speed time graph of a body is in the form of a line whose slope is negative, then that particular graph exhibits constant retardation. So this is an example of constant retardation. Speed is decreasing with respect to time. Okay, यहाँ पे conclusion दिया. I want you to note it down. If we get a straight line in speed time graph such that speed decreases with time, then the body has constant retardation or deceleration or a constant negative acceleration, right? If speed decreases with time, then the body has constant retardation or deceleration
or constant negative acceleration. Correct? Okay, after noting this down, we are ready to move ahead. Distance from speed time graph. So one quantity which can be measured from speed time graph is distance. Distance can be measured. And how you can find the distance? The distance is found by finding the area under the graph. I will write here, please note it. Distance from speed time graph is equal to area under the graph. So how? Now you see that there is a line here. This is your speed time graph. What is the area under this graph? This one. This area. We are talking about this area. How you find the area under the graph? What is the shape of this figure? This is a triangle. So what is the area of triangle? Half into base into height. If you find the value of half into base into height in this particular example, you will find the distance. For example, the height over here is am. The value of am is 8 and the base over here is 4. So half into 4 into 8 will give you 16. Right? Suppose you want to find the distance covered by the body in last 2 seconds, that is from 2 seconds to 4 seconds. No problem. You just highlight this much part. Now what shape can you see over here? What shape is ABNM? ABNM, do you see? What is the shape of it? It is a trapezium. You know trapezium? We have studied in Heron's formula. Now all these formula are very important. Heron's formula, or you can say half into base into height. That's why we have completed that chapter before only. So area of trapezium is half into sum of parallel sides into the distance between them. That is altitude or height. So half into sum of parallel sides, Bn plus An. What is Bn? Bn is nothing but 4 units. See, 4. What is Am? Am we already know, it is 8. And what is the distance between them? The distance between them is this. What is the distance? 2 units. Time 2 seconds to 4 seconds. I will erase and show you. See here, 2, 4, right? So half into sum of parallel sides, that is 4 plus 8, into distance between them, that is 2. So the displacement from A to B in this case is 12 meter. So for finding distance or displacement from speed time graph or velocity time graph, you just find the area under the graph. Okay, some examples here. Figure 31, what does it show? This shows that the body is moving with constant speed. And what is the constant speed? 4 meter per second. What is the acceleration of this particular example? Acceleration is 0. What if they ask you to find the distance covered by the body in 4 seconds? What would you do? If they ask you how to find the distance covered by body in 4 seconds, you will draw a line, a straight line from 4 seconds to cut the graph vertically, right? Correct? And then you will shade this area. Correct? So here you can see that speed of the body is constant. And if you want to find the distance, what is the shape of this figure which is obtained under the graph? It is a rectangle or square. Square. So what is the area of square? 4 into 4, side into side. So the distance covered by the body in 4 seconds is 16 meter. Right? So this formula which I just showed you, how to find the distance covered by body from a speed time graph, is applicable here. So, okay, the next time is a body which is moving with uniform acceleration. Its speed is increasing with time. We can find the acceleration by finding the slope of the graph. And we can find the distance covered by the body by finding area under the graph. The last graph shows that speed of the body is increasing from A to B. So A to B is uniform acceleration.
We can find the value of acceleration by finding the slope of AB. We can find the distance covered by the body from A to B by finding the area under the graph. That is area of A, B, C. Sorry, C is already used. I will use something else. I will use C, B, P, Q. P, O. Maybe this is O. So if you find the area of ABPO, you can find the distance covered by the body from A to B. Okay, simultaneously the body is moving. It's not stopping at B. It is moving in opposite direction towards C. Now, no. I'm sorry. This is speed time graph. Right? If the speed time graph goes downwards, that means the speed of the body is decreasing. It is not moving in opposite direction. It is slowing down. It is slowing down, and this is known as constant retardation, uniform retardation. So A to B is uniform acceleration, B to C is uniform retardation. Correct? So that is one thing which I wanted to tell you. Okay, the next is velocity time graph. Now there is not many difference between velocity time graph and speed time graph. They are both the same thing. Only thing is velocity time graph can also be negative. I will show you that. So here you see a velocity time graph with a body moving with constant velocity, just like speed time graph, just like this one over here. What is the difference? Nothing. They both are showing a body moving with constant speed or velocity, right? But if it is like this, then the body is moving with constant acceleration. This is a velocity time graph, and we can find the acceleration by finding the slope of the graph. Right? What about this? Here the body is moving with constant retardation, uniform retardation, and we can find the slope, but it will be negative. So that is the value of retardation. To sum up, we have studied all these types of graphs. What a chapter, man. What a topic for today. We have studied position time, या फिर displacement time graph like this. What does this show? The body is at rest. Please draw all of these, okay? We have studied a displacement time graph or a distance time graph like this. This showed body is moving with constant speed. This displacement time graph, which is a curve, shows body with non-uniform motion or variable speed. Displacement time graph again, and displacement time graph again. Distance time graph and displacement time graph both are covered here. Speed time graph of three types: constant speed, constant acceleration, constant retardation. And velocity time graphs, the same three types. Right? Now the examples. Interpretation. I'm going to discuss the example in the next video. In this video, I just want you to take notes of the types of graphs that we have studied in detail. Take all the notes and keep these things in your mind. Okay? If you forget certain things, it will be a trouble for you. So this part was about graphs. Next part will be about examples, where we are going to study the graphs in detail with the help of examples. Also, we are going to do numericals, solve the numericals based on graphs. Correct? So I'll see you in the next video. Bye bye.